এই দেখো সার্ভিস আর গুডস এর মধ্যে ডিফারেন্স আমরা বলছিলাম, বুঝিয়েছি তোমাদের। সার্ভিস আর গুডস এর মধ্যে আমি বেসিস বলবো, তুমি ডিফারেন্স বলবে। तो फर्स्ट बेसिस होচ্ছে टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी माने होচ্ছে समझाना पड़ेगा कि टेंजिबिलिटी माने जो दिखता है उसका। तो सर्विस क्या होगा और गुड्स क्या होगा। अच्छा ये बेसिस के लिए कर दिया कॉलम, ठीक है। तो ये बेसिस हो गया, ये हो गया सर्विस और ये हो गया गुड्स, ठीक है। तो कौन सा इंटेंजिबल है? ये क्या? ये है क्या? सर्विस। सर्विस इज इंटेंजिबल। सर्विस क्या है? इंटेंजिबल है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि इसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब भी होगा तो वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। जैसे डॉक्टर अगर उनको कुछ दिया सर्विस तो उसको टच नहीं कर सकते, तो सर्विस को फील करते हैं। फील कर सकते। तुम यदि डॉक्टर्स के पास गए ट्रीटमेंट आने, तुम उस ट्रीटमेंट को फील कर रहे हो, उसको टच तो तुमको देख तो नहीं पा रहे हो, सीन नहीं कर पा रहे, टच नहीं कर पा रहे, उसको सिर्फ फील किया जाता है। जो रेलवे का सर्विस को फील करते हैं हम लोग, ठीक है। जबकि गुड्स मीन्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तुम बोला तभी वो टेंजिबल होगा। जैसे ये बुक है, ये बुक को अगर तुम बेच रहे हो तो उसको तो तुम फिजिकल एक्सिस्टेंस को टच कर सकते हैं, सील कर सकते हैं ना। तो ये देखो नंबर 2 হচ্ছে বেসিস হচ্ছে কি কনসিস্টেন্সি। কনসিস্টেন্সি মানে বুঝতে পারো কি এক যেমন জিনিসটা, তাহলে বলো কোনটা? সার্ভিস ইজ ইনকনসিস্টেন্স। কেন? রিজন বলো। এটা হচ্ছে কনসিস্টেন্স। একটা ভালো एग्जांपल দিয়ে আমাকে বোঝাও। কেন? আরো একটা एग्जांपल আমি দিয়েছি, এটা তোমার একটা एग्जांपल মনে করো। কেন সার্ভিস ইনকনসিস্টেন্স মানে সব সময় আলাদা আলাদা কেন হচ্ছে, আর কনসিস্টেন্স এটা কেন হচ্ছে? মানে ধরো একটা ডক্টর পেশেন্ট যদি আসে, এবার ওই ডক্টর ওই পার্টিকুলার পেশেন্টের মধ্যে যে ডিজিজটা আছে ওর বাবাকে তো করতে পারবে না। না ওইটা আলাদা, ওইটা অন্য জিনিসের। কনসিস্টেন্সি মানে হচ্ছে কি সব সময় একই ধরনের সার্ভিস প্রোভাইড করা হবে কি হবে না সেটা নিয়ে। তুমি বলছো এটা ইনকনসিস্টেন্স মানে ডিফারেন্ট টাইমে ডিফারেন্ট টাইপস করছে, বা ডিফারেন্ট কাস্টমারকে ডিফারেন্ট টাইপের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, সেটা হচ্ছে। আর এইদিকে কি হচ্ছে ভাবো, কনসিস্টেন্স তুমি বললে কনসিস্টেন্স আছে, গুডস ঠিক আছে, গুডস তো হিসাবে করবে না জিনিসটা বলবো। সার্ভিসকে আমরা ইনকনসিস্টেন্স বললাম। যদি সকাল থেকে যদি বিকেল অবধি আমি পড়াই, কিন্তু আমি একইটা টপিক 10টা ক্লাসে গিয়ে কিন্তু সিমিলার না, নতুন ধরনের আলাদা আলাদা আমার হবেই। সার্ভিস প্রোভাইডার হিমসেলফ চেঞ্জ দেয়ার সার্ভিস, ঠিক আছে তো, অ্যাট ডিফারেন্ট টাইম, ঠিক আছে তো। যখন আমি সকালের ব্যাচে পড়িয়েছি সেই টপিক থেকে যদি আমি বিকেলের ব্যাচে পড়ি, তো আমার কোনো ডং কেন, আমি যাকে প্রোভাইড করছি তার রিকোয়ারমেন্ট হিসাবে আমাকে বোঝাতে হবে। আমি তোমাকে বোঝাচ্ছি, তুমি বাংলা ভালো বোঝো, আমি তোমাকে বাংলাতে বুঝিয়ে দিলাম, বা ইংলিশ ভালো বোঝো, আমি ইংলিশে বুঝিয়ে দিলাম। কিন্তু একজন আসলো যাকে বাংলা বোঝে না, তাকে আমাকে হিন্দিতে যদি ও বুঝতে চায় তাকে আমাকে হিন্দিতে বোঝাতে হবে। দ্য সার্ভিস ইনকনসিস্টেন্স হচ্ছে না সবার জন্য আলাদা আলাদা অ্যাজ পার দ্য রিকোয়ারমেন্ট অফ দি কাস্টমার, ঠিক আছে তো, বুঝতে পারলে। কিন্তু যদি তুমি বই কিনতে যাও, তোমার বই হচ্ছে একইটা টপিকে বোঝানোর ধরনটা ডিফারেন্ট ইনকনসিস্টেন্স। একইটা লোক একইটা জিনিস আলাদা আলাদা ভাবে বোঝাচ্ছে, ইনকনসিস্টেন্স ডিফারেন্ট টাইমে, এটাকে ইনকনসিস্টেন্সি ধরা হলো, ঠিক আছে তো। কিন্তু কনসিস্টেন্স কি হচ্ছে, তুমি বই নিতে আসবে, সকালে বই নিতে আসবে, এই বইয়ের নাম বললে তখনও এই বইটা পাবে। বিকালে যদি তুমি আমার থেকে বই চাও কি স্যার বিজনেস স্টাডিজে আমাকে সন্দীপ গর্গের বই দিই, তাহলে তখন তোমাকে একইটা বই তুমি তখনও সেম স্যাটিসফাইড হবে, সকালেও সেম স্যাটিসফাইড হবে। কিন্তু কখনো কখনো কি হয়, কেউ ডক্টরের চেম্বারে দেখবে অনেক ভিড় থাকে, তখন ডক্টর 10 মিনিটে করে দেখলো, তুমি বলো কি ধর আজকে তো ভালো করে দেখলো না, ঠিক আছে তো। কনসিস্টেন্সি সেম থাকে না, ঠিক আছে তো। তাহলে সার্ভিস প্রোভাইডারে ডিফারেন্ট সময় অ্যাকর্ডিং টু দি রিকোয়ারমেন্ট, অ্যাকর্ডিং টু দি সিচুয়েশন ওর চেঞ্জ হয়ে যায়। সেম সার্ভিস প্রোভাইডার, আর এটাও তো সেম এর বললাম। কখনো কখনো তুমি একইটা কাজ অন্য লোক থেকে করার তো আলাদা আলাদা পাবে, ঠিক আছে তো। কিন্তু এই বইটা তুমি যেখান থেকে তুমি এটা ফ্লিপকার্ট থেকে নাও, অ্যামাজন থেকে নাও, কোন দোকান থেকে নাও, তুমি তো সেমই জিনিসই পাবে। তাহলে কনসিস্টেন্স আছে না গুডসটা, কিন্তু সার্ভিসটা সেইভাবে কনসিস্টেন্স নেই। আলাদা আলাদা সার্ভিস প্রোভাইডার কাছে আলাদা আলাদা জিনিসটা হচ্ছে, আর একইটা সার্ভিস প্রোভাইডার ডিফারেন্ট টাইমে ডিফারেন্ট আছে, এই জন্য, ঠিক আছে। तुम बोले कि सर्विस और गुड्स में डिफरेंस हो रहा है,
सेपरेशन के हिसाब से, सेपरेशन बोलो और प्रोडक्ट ठीक है। तो प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस या गुड्स जो बेचता है उसके हिसाब से, सर्विस जो बेच रहा है उसके हिसाब से सेपरेशन क्या होगा कि नहीं होगा उसके सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेटेबिलिटी के हिसाब से तुम बोलोगे सर्विस और गुड्स में सेपरेट कर सकते हैं, इनसेपरेबल। इनसेपरेबल क्यों बोले? व्हाई सर्विस इज इनसेपरेबल एंड गुड्स इज सेपरेबल? इसका हमको एग्जांपल तुमको जो लैंग्वेज में बोलना है, हिंदी इंग्लिश बांग्ला जो लैंग्वेज में बोलना है वही लैंग्वेज में समझा। सर्विस के बोलছে इनसेपरेबल और गुड्स के बोलছে सेपरेबल। কেন? क्यों रीजन बोलो? वही एक एग्जांपल जो भी दिमाग में आ रहा है एग्जांपल। सेपरेबल तो समझती हो, अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो सर्विस को तुम बोली अलग नहीं किया जा सकता। किससे अलग नहीं किया जा सकता? कस्टमर से और सर्विस प्रोवाइडर दोनों से, दोनों का साथ में रहना जरूरी है दोनों का साथ साइमल्टेनियसली। जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे तुमको, हम तुमको पढ़ा रहे तो मेरा रहना जरूरी है ना, ठीक है। मेरे जगह हम किसी और को भेज दिए, किसी और बैंक को बोले कि तुम आके पढ़ा दो, क्या उसका सर्विस और मेरा सर्विस को सेम मिलेगा क्या? नहीं तो कोई प्रोटेस्ट होता ही क्यों? तो प्रोटेस्ट होगा ही नहीं, ठीक है। मेरा मतलब तुमको यदि सुजय सर पढ़ने आना तो सुजय सर का ही तुमको चाहिए, ठीक है। यानी सब जो कस्टमर अब तुमको पढ़ाना है तो हमको तुमको भी जरूरत है। तो कस्टमर का और सर्विस प्रोवाइडर का दोनों का साथ में रहना जरूरी है। वो लोग इनसेपरेबल और सर्विस का यहाँ पर इनसेपरेबल सर्विस प्रोवाइडर। अभी तो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पूछ रहे। सर्विस प्रोवाइडर और उसका सर्विस कभी अलग नहीं हो सकता। साथ में रहेगा तभी आप गुड्स में कोई और भी बेचेगा तभी। आप सोचो कि गुड्स में फिर अगेन तो फिर इस गुड्स का बहुत पब्लिसिटी करता है कि ये जो गुड्स है बिजनेस स्टडीज का तुम खरीदने आए, अगर हम रहे या मेरा भाई रहा या मेरा लेबर रहा, किसी से भी तुमको ये बुक मिला, तुमको सेटिस्फेक्शन सेम मिला, तुम तो बुक के लेने आए थे। तो बुक या गुड्स होता है जिस चीज़ का हम लोग बिजनेस करते हैं, तो गुड्स हुआ तो तुमको तो सेम ही सर्विस मिला ना, सेम ही चीज़ मिला, सॉरी सेम ही गुड्स मिला। तो गुड्स के केस में क्या हो रहा है कि जो बेचने वाला है या बनाने वाला है उसको और उसका सामान को अलग कर सकते हैं। लेकिन सर्विस के केस में क्या हो रहा है, सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस है उसको डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इसको क्लियर नहीं की। और एक क्वेश्चन एग्जांपल तो नहीं दिए सर। स्टॉक, स्टॉक के हिसाब से इसको स्टोर भी बोल सकते हो या इन्वेंटरी भी बोल सकते हो। इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। नहीं कर सकते हो, क्या बोलता है? Cannot be stored. It can be stored. It cannot be स्टोर stored. It can be stored. मतलब किसी का सर्विस आप स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब सर्विस हो रहा है तो कभी आपको उसी वक्त ही रहना पड़ेगा। और गुड्स में वो गुड्स प्रोड्यूस का भी हुआ और बेचने का टाइम वो तो डिफरेंट हो ही सकता है। गुड्स से प्रोडक्शन अभी है तो, लेकिन सर्विस में क्या हो रहा है, सर्विस जिस वक्त हो रहा है सर्विस प्रोवाइडर का उसी वक्त ही सर्विस उसको डिलीवर करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि सर्विस को स्टोर करके बाद में डिलीवर करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये नहीं बोलना सर वीडियो है ये है, वो अलग मैटर हो गया। तुम हम ट्रीटमेंट का बात कर रहे हैं, सर्विस का उस सब का बात कर रहे हैं जहाँ पर स्टोरेज नहीं। डॉक्टर के पास यदि तुम जाओगे तो जिस दिन तुम गए उसी दिन में तुमको सर्विस मिलेगा, ठीक है। तुम यदि नहीं उस जो मंगलवार का जो जैसे ट्रेन का टिकट हो गया आपको और ट्रेन का जर्नी हो गया, ट्रेन का टिकट तुम स्टोर कर सकते हो, ये ट्रेन का जर्नी को स्टोर नहीं कर सकते। 5 बजे वाला ट्रेन छूटा मतलब 5 बजे वाला ट्रेन का सर्विस तो छूटा, तुम अब 6 बजे वाला उससे अच्छा ट्रेन पकड़े हो, लेकिन वो दूसरा जर्नी का एक्सपीरियंस हुआ। उस ट्रेन का जर्नी का एक्सपीरियंस तो तुम्हारा नहीं होना, उसको स्टोर करके तो नहीं रख पाए कि हम 5 बजे का 6 बजे ले लेंगे। लेकिन गुड्स में तुम इसको 5 बजे लेने आओ, 6 बजे लेने आओ, 7 बजे लेने आओ, तो सेम ही बुक मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आया? क्वेश्चन में बेसिस हम दे दिया इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर, ठीक है।
करने का कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। सर्विस में क्या होगा और गुड्स के केस में क्या होगा? हाँ, कस्टमर के साथ में रहना मैटर करेगा कि नहीं? सर्विस में मैटर करेगा, मैंने कंपलसरी है कस्टमर का जो रहना हो रहा है इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी ऑफ कस्टमर इज नेसेसरी, ठीक है। तो इसमें बोला क्या हो रहा है, नॉट कंपलसरी। एक एग्जांपल दो। सर्विस जब हम कर रहे हैं सर, तो उस टाइम पे सर्विस करने टाइम उनके पास कस्टमर होना चाहिए। जैसे कि हम कार्ड बेच रहे हैं तो सेल्समैन को कोई कस्टमर लगेगा तो कार्ड खरीदेगा। कार्ड बेचर सर्विस कार्ड बेचेगा तो फिर तो गुड्स में आ गया, कार्ड तो गुड्स है। पर सेल्समैन जिस तरीके से कार्ड बेच रहे हैं वो तो कार्ड बेचने का सर्विस का तुम उसमें गुड्स में और सर्विस में तुम लिया जा रहा है। जैसे हम तुमको बोले हैं कि हम यहाँ कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वॉल्वमेंट मिले, कस्टमर का रहना जरूरी है या नहीं जरूरी है सर्विस में और गुड्स। सोचो, तुम फिर से बोल रहे, अब तुमको सामने आगे तो तुम्हारा सोचो किसी चीज़ का ऑपरेशन है, तुम्हारा भैया कि सर आपको डॉक्टर के पास जाके उसने बोला कि मेरा भाई आज नहीं आ पाएगा, तो मेरा तो क्या तो भैया का ऑपरेशन हो जाएगा। यानी तो जिसका जो प्रॉब्लम है उसी को आना होगा। तुमको हेयर कट करना है, तुम अपना बोले कि ये तू जाके मेरा हेयर कट कर लेगा, कर क्या हो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तुमको ही जाना पड़ेगा ना। कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है सर्विस में। जबकि गुड्स के केस में क्या हो रहा है, गुड्स में तुमको बुक चाहिए बिजनेस स्टडीज का संदीप गर्ग का, तो तुम गए, तुम्हारा पापा गए, तुम्हारी मम्मी गए, तुम्हारा छोटा भाई गया, तुम्हारा बड़ा भाई गया, दुकान से लेकर आया, तुमको यही बुक ही मिला ना, सेम सेटिस्फेक्शन ना। यानी कस्टमर रहे कस्टमर नहीं रहे, गुड्स में कोई मैटर नहीं करता है, कोई भी लेकर आ जाएगा तो चलेगा। जैसे सर्विस प्रोवाइडर का रहना जरूरी होता है सर्विस में, उसी तरह कस्टमर का भी इन्वॉल्वमेंट साइमल्टेनियसली रहना जरूरी होता है। अगर वो नहीं रहा तो गलत, तब वो उसको गलत मीन्स कि उसको नहीं मिलेगा वो सेटिस्फेक्शन, या वो उसका जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। सर कार्ड